हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेवी शो। आज हम एक स्पेशल वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। आज विक्ट्री वेंकटेश जी का बर्थडे है एंड हैप्पी बर्थडे विक्ट्री वेंकटेश जी। एक स्पेशल वीडियो अपलोड हुआ है सुरेश प्रोडक्शंस की तरफ से, जो उनके भाई हैं। तो चलिए बिना किसी देर के चेक करते हैं। Victory. Don't learn from Kamal Hassan, learn from Venki. Work as hard as Venki. You will be the next superstar. Cat under the hand, searching the motherland. Horrible, sir. అట్ట ఏడిపించకపోతే దాని కడుపులో కాయగా ఎంచొచ్చుగా 24 గంటలు మీరు నా కొంపలో ఏడుస్తూ కూర్చుంటే కాయలు ఎక్కడికి వస్తే నీ తలకాయ. కొలీగ్స్ ఎలా ఉన్నారు? ఒక అమ్మాయి బాగుంది అంక. నువ్వు చక్కని చుక్క, అది ఎండిపోయిన నక్క. పెళ్ళనేది గేదెని పెంచడం లాంటిది. పాలు పితికేటప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది కానీ పేడెత్తప్పుడే చిరాగ్గా ఉంటుంది. మేము హైదరాబాద్ వాళ్ళం, నవ్వించడమే కాదు ప్రేమంటే ఏడిపించడం కూడా తెలుసు. అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో. నా 45 ఏళ్ల కెరీర్ లో 40 సంవత్సరాలు వెంకితోటి గడిచిపోయింది. తను చేసే ప్రయత్నంలో ఎన్ని సినిమాలు, 75 సినిమాలు. ఒక సినిమాకి పొంతనలు ఉండదు. అది మీరు అమాయకంగా చేసే చంటి కానివ్వండి, ఒక గణేష్ లాంటి సినిమా అగ్రెసివ్ గా సమాజంలో తప్పు జరిగితే ఓరలేని మనిషిగా కానివ్వండి, రొమాంటిక్ గా బలపం పట్టు పాడే పాటలు కానివ్వండి, ఒకటా రెండా. మల్లేశ్వరి నా ఫేవరెట్ సినిమా. ఆ సినిమా ఎన్నిసార్లు చూస్తారో చెప్పలేను. భయపడకు, మీ ముగ్గురికి ఏం జరగదు, జరగనివ్వను. ఒక చంప కొడితే రెండో చంప చూపించే టైంలో కాదు పుట్టింది, ఒక చంప కొడితే 2 చంపలు వాయించే టైంలో పుట్టాను. హోమ్ మినిస్టర్ తో చెప్పి నీ అంత చూస్తాను. నా పెళ్ళ కూడా వాడు తులసి, పర్వతనేని తులసిరా. ప్రేమకు లొంగుతుంది కానీ పెద్దరికానికి కాదు. ఎనీ సెంటర్ సింగిల్ హ్యాండ్ గణేష్. ఫేమస్ డైలాగ్. పలుకే పళ్ళు జాగ్రత్త, చూసే కళ్ళు జాగ్రత్త. సార్ వెంకటేష్ బాబుని హీరోయిన్ చేసేరాదా మేము రాస్తామా? నా నోటంటే ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు. అందుకే అతను మా కలంపుత్రుడు అంట. నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కలుసుకునేది చాలా తక్కువ మందిని. ప్రత్యేకించి నేను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకునేది ఒక వెంకటేష్ గారిని కలుసుకుంటాను, సినిమాకి సంబంధం లేక. నాకు వెంకటేష్ గారు ఇంకో బ్రదర్ లాంటి వ్యక్తి. నాకు ఇన్ని ఏళ్ల తర్వాత కూడా అదే డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఇట్స్ జస్ట్ సంథింగ్ విచ్ ఐ నీడ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక స్క్రిప్ట్ ని జడ్జ్ చేయడం ఆయన తర్వాత ఎవరైనా. వెంకటేష్ గారు ఆవకాయలు అంటే అంటే ఆయన నచ్చని తెలుగు ప్రేక్షకుడు ఉండడు. ఈసారి జాతరని రంగులతో కాదు, మీ రక్తంతో ఇరిపిస్తా. Family man, action hero, comedy entertainer, like everything. Yeah, he does everything like this. कौन सा मूवी है यार वो? हैप्पी बर्थडे। ओह सच में यार, जो चिरंजीवी जी बोल रहे थे ना उनके बारे में कि बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं। लाइक वो कॉमेडी कर सकते हैं। जब वो कॉमेडी करते हैं ना, वी कुडंट रिलेट हिम टू द पर्सन हु इज़ वेरी एंग्री। लाइक जो स्वॉर्ड्स के साथ कुछ मैसेज के साथ दिखा रहे थे ना, तो वो पर्सन और ये पर्सन इट्स सो ड्रास्टिक। लाइक इतना डिफरेंस दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सेम पर्सन है क्या, कम्प्लीटली इस तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाले बोल के। ही सो गुड यार। लाइक उनका कॉमेडी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ सीन्स देखे हैं उनके, उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। एंड फैमिली मैन की तरह इमोशनली मैंने शायद आपको पहले 2 वीडियोस में मेंशन किया था, जब वेंकटेश जी के बारे में बात आया था कि मेरी मॉम को वेंकटेश जी बहुत पसंद है। लाइक उनके जो भी मूवीज़ होते हैं वो बार बार देखती थी। मैंने मेरी मॉम के साथ ही बैठ के उनके मूवीज़ देखे हैं। इंट्लो इल्लालु अट्रिटो प्रियुरालु वो मैंने देखा था। वो लाइक ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं मेरी मॉम ने कितनी बार देखी। जब भी टीवी में वो मूवी आता था, शी इज़ लाइक काम होता है तो बोलती थी मैं बाद में कर लेती हूँ, पहले देख लेती हूँ। उतना उनको पसंद था। मैंने उनके साथ ही बैठ के थोड़ा क्लिप्स में ऐसे देखे थे एंड आई लव्ड इट यार। लाइक उनके सीरियस हो जाए, इमोशनल सीन्स हो जाए, कॉमेडी, एक्शन, हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ एवरग्रीन हीरो। और नानी ने जिस तरह से कहा था, वो एग्जाम्पल दिया ना कि आवकाई की तरह है वेंकटेश जी, उनके एक पिकल की तरह है। लाइक कोई भी ऐसा इंसान, पर्सनली मैंने तो कहीं किसी को कहते हुए नहीं देखा है कि मुझे पिकल पसंद नहीं है। वाह, ही इज़
that kind of person who's needed, who's liked every person, हर एज के उस तरह के मूवीज़ होते हैं उनके. एंड वाओ यार बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स, बहुत सारे वेटरन एक्टर्स उनके बारे में बात कर रहे हैं. एंड टॉप एक्टर्स जो भी आजकल महेश बाबू हो जाए एंड लाइक बहुत सारे लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, अच्छा ही बोल रहे हैं, पवन कल्याण जी हो जाए. एंड एवरीवन इज़ लाइक प्रेजिंग. एंड मोस्टली जब भी इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं अपने वर्क को जो प्रूव करके रखे हैं, सो एवरी एक्टर हैज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम देम. सो इनके बारे में जैसे महेश बाबू ने कहा था कि डिसिप्लिन सीखना चाहिए उनके. एंड ही हैज़ दैट, लाइक उनका जो बिल्ड है ना, स्टार्टिंग में जब मूवीज़ में उतना ज़्यादा दिखता नहीं था, बट अभी जब उनका थोड़ा मिड 40s के बाद से 50s में उनका थोड़ा बिल्ड ऐसा दिखने लगा है कि ही लुक्स लाइक काइंड ऑफ जब बहुत बड़े इंसान होते हैं तो उनको पुलिस की तरह, बॉडी गार्ड की तरह, सिक्योरिटी गार्ड, उस तरह के रोल्स बहुत सूट करते हैं मुझे लगता है. बट ही हैज़ प्रूव दैट विथ दिस बिल्ड ऑल्सो आई कैन एक्ट एज अ family entertainer. With this belt I can act comedy scenes and I can make them hit also. सब लोगों को पसंद भी आएगा, इतनी अच्छी तरह से कर लूँगा बोल के. जिस तरह से उन्होंने प्रूव किया है, जिस तरह से वो एंटरटेन करते आए हैं सब लोगों को, कमेंडेबल यार, बहुत अच्छा लगा. एंड ही इज़ 65 आई थिंक. दिस बर्थडे ही इज टर्न 65. बट सब यार लाइक जो भी उस टाइम के जो एक्टर्स हैं, चिरंजीवी जी हो जाए, वेंकटेश जी हो जाए, नागार्जुन जी हो जाए, ये सब लोग जिस तरह से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं ना, सच में यार, इट्स आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दीज पीपल लुक लाइक दे आर एजिंग बैकवर्ड्स. हाँ, कुछ लोगों में दिखता है कि वो थोड़ा एज उनके चेहरे पे दिख रहा है, उनके बॉडी मूवमेंट्स में दिख रहा है उनके, बट मोस्टली दे हैव मेंटेन सो मच कि ऐसा लगता है कि दे आर रियली एजिंग बैकवर्ड, एक फाइन वाइन की तरह एज हो रहे हैं बोल के. बहुत ही अच्छी तरह से कहा है जितने लोगों ने भी कहा है. एंड परचूरी ब्रदर्स में वन ऑफ द ब्रदर वेंकटेश्वर राव, आई थिंक उनका नाम, पता नहीं उनके मुंह से कैसे आ गया कि वो कह रहे हैं ना कि आपके बेटे को रामानायण जी के साथ सामने बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप आपके बेटे को हीरो क्यों नहीं बनाते हैं, हम स्टोरी लिखेंगे उनके. आई थिंक दैट मोमेंट चेंज एवरीथिंग. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि जब मूवीज़ करने से पहले वेंकटेश जी फॉरेन में पढ़ते थे, आई थिंक USA में पढ़ते थे. एंड देन आफ्टर ही केम बैक, आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई थिंक ही केम बैक. एंड देन शायद इनके कहने के बाद उनके डैड ने पूछा होगा या फिर उन्होंने ही इंटरेस्ट दिखाया, पता नहीं, मूवीज़ में आगे. बट या आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन ही हैज़ टेकन. उनके डैड का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो मुझे पता नहीं कि उनको कभी ख्याल आया भी होगा पहले कि मैं पढ़ने के बाद मैं एक्टिंग में अपना आई ट्राई माई हैंड के, पता नहीं. बट शायद इनके पूछने के बाद उनको वो आइडिया आया या फिर पहले से ही था. बट एनीवेज इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी गुड. एंड और इनके नए नए मूवीज़ आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. उनके मूवीज़ के गाने के ऊपर हमने रिएक्ट किया था, रिसेंट मूवीज़ जो भी आए हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग स्पेशल गेस्ट, स्पेशल कैमियो इन मनशंकर वरप्रसाद गारू, उस मूवी में भी कर रहे हैं. सो होपफुली उनका जो भी उस मूवी में अपडेट है जल्दी आ जाएगा हम लोगों को. वेटिंग फॉर द बेस्ट. एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे विक्टर वेंकटेश जी. एंड वी ऑल लव यू. आप जिस तरह के मूवीज़ करते आए हैं, उनका आपका स्टोरी सिलेक्शन हो जाए, बहुत ही अच्छे. एंड जो भी वीडियो में कुछ मूवीज़ के सीन्स दिखाए गए हैं, क्लिप्स दिखाए गए हैं, मुझे कुछ मूवीज़ के नाम याद आ रहे थे. कुछ मूवीज़ ऐसे लग रहे थे मैं जो सोच रही हूँ शायद गलत मूवी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई डिडंट स्पेल इट आउट. बट कुछ मूवीज़ मैंने शायद सही पहचाना है, लाइक जयम मनदेरा, आई थिंक वन मोर करियप्पा, आई थिंक प्रेमिंचुकुंदाम रा, जयम प्रेमंटे इदेरा. रिसेंटली हमने री रिलीज ट्रेलर के ऊपर भी रिएक्ट किया हुआ था उन दोनों मूवीज़ के ऊपर. आई थिंक तुलसी मूवी भी है जो बहुत एग्रेसिव में फेस फुल ऑफ ब्लड एंड मैशेट पर के तुलसी मूवी है शायद. मैंने कुछ क्लिप्स देखे हुए हैं, लाइक एक डायलॉग या ऐसे क्लिप्स देखे हुए हैं. सो दैट्स हाउ आई केम टू नो दोज मूवीज. आई एम नॉट श्योर कौन सा सीन. दूसरे मूवीज़ बहुत सारे हैं बट आई डोंट नो व्हाट. लाइक पुराने मूवीज़ में ज़्यादा जानती नहीं हूँ. अभी जो मैंने नाम करी है उनके अलावा इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं जानती हूँ. बट यार बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप उनके फ़ैन हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा. नई भी हैं तो भी इस चैनल के तो उनको विशेष देना चाहते हैं तो कमेंट्स में विशेष भेज दीजिएगा. लेट मी नो.
व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ हिम, लाइक आपके फेवरेट एक्टर हैं या फिर उनके मूवीज आपको अच्छे लगते हैं, यू जस्ट वॉच हिज मूवीज फॉर योर स्ट्रेस रिलीफ और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज उनके मूवीज बहुत फनी होते हैं, बहुत कॉमेडी डिनर होते हैं, अच्छे होते हैं। आप लोग बताइए यार, मुझे जानना है कि आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।